میں ہوں درخشا عرفان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں صبح سویرے سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں زین علی سے۔ زین بتائیے گا۔ آج بالکل صوبائی دارالحکومت لاہور میں صبح سویرے جو ہے وہ سورج اپنی آنکھیں جو ہے وہ دکھا رہا ہے، تاہم دوسری طرف آسمان پر جو ہے وہ ہلکے بادل بھی موجود ہیں جو سورج کو اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم آج دن بھر بارش کی جو ہے وہ کوئی پیشن گوئی جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ اگر بات کر لیجیے کچھ درجہ حرارت کی تو اس وقت لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا کم از کم درجہ حرارت 27 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ جبکہ اس وقت لاہور میں جو ہے وہ جہاں دھوپ نکلی ہے تو وہیں پر 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا بھی چلنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جس نے جو ہے وہ گرمی کی شدت کو جو ہے وہ کافی کم کر دیا ہے۔ تاہم پچھلے کچھ دنوں کی نسبت آج جو ہے وہ درجہ حرارت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دوسری طرف جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 85% تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس جو ہے وہ مونسون کی بارشیں ختم ہونے کے بعد آج لاہور کا جو فضائی آلودگی ہے ایئر کوالٹی انڈیکس میں اس میں بھی جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا۔ آج لاہور کا اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 150 کے قریب جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تاہم دوسری طرف محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہے وہ مزید بارشوں کی پیشگوئی جو ہے وہ کی گئی ہے، اور یہ جو بارش برسنے کا جو سلسلہ ہے یہ آئندہ پیر سے منگل تک جو ہے وہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ تاہم آج جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ دھوپ اور سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ جی ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ مہنگائی کا جن بے قابو، شہری سستی اشیاء خرونوش سے محروم ہو گئے۔ پولٹری مصنوعات کے دام عدم استحکام کا شکار ہو گئے۔ مرغی کے گوشت کا سرکاری ریٹ 595 روپے جبکہ مارکیٹ میں 680 روپے فی کلو بکنے لگا ہے۔ فارمی انڈے 1 روپیہ مہنگے، فی درجن قیمت 301 روپے ہو گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے، شہری سستی اشیاء خرونوش سے محروم ہو گئے ہیں۔ پولٹری مصنوعات کے دام عدم استحکام کا شکار ہو گئے ہیں۔ مرغی کے گوشت کا سرکاری ریٹ 595 روپے جبکہ مارکیٹ میں 680 روپے فی کلو بکنے لگا ہے۔ فارمی انڈے 1 روپیہ مہنگے، فی درجن قیمت 301 روپے ہو گئی ہے۔ پولٹری مصنوعات کے دام عدم استحکام کا شکار ہو گئے ہیں۔ مرغی کے گوشت کا سرکاری ریٹ 595 روپے جبکہ مارکیٹ میں 680 روپے فی کلو بکنے لگا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں شدید سیلابی صورتحال کے باعث قومی اور صوبائی اسمبلی کی 9 نشستوں پر ضمنی انتخابات ملتوی کر دیے ہیں۔ قومی اسمبلی کے 5 اور صوبائی اسمبلی کی 4 نشستوں پر ضمنی الیکشن ملتوی کیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ جاری ہوگا الیکشن کمیشن کا حکم نامہ۔ قومی اسمبلی کے جن حلقوں میں ضمنی الیکشن ملتوی کیے گئے ان میں NA 66 وزیر آباد، NA 96 فیصل آباد، NA 104 فیصل آباد شامل ہیں۔ NA 129 لاہور اور NA 143 ساہیوال کے انتخابات بھی ملتوی کر دیے گئے۔ صوبائی حلقہ PP 73 سرگودا، PP 87 میاں میں بھی ضمنی الیکشن نہیں ہوں گے۔ PP 98 فیصل آباد اور PP 203 ساہیوال کے انتخابات بھی ملتوی کر دیے گئے۔ نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ سرکاری اور نجی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ریلیف اور ریسکیو آپریشن میں مصروف عملہ انتخابی فرائض سر انجام نہیں دے سکتا۔ پنجاب حکومت نے سیلاب کی صورتحال کے باعث ضمنی الیکشن مؤخر کرنے کی سفارش کی۔ متاثرہ علاقوں میں کم ٹرن آؤٹ اور ووٹرز کی محرومی کا خدشہ ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کہتے ہیں کہ سیلاب سے 25 اضلاع متاثر اور 20 لاکھ افراد اپنے گھروں سے باہر ہیں۔ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کا سیلاب سے دریا کے اندر بننے والی آبادیوں کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ۔ وزیر آبپاشی قاسم پیرزادہ کہتے ہیں جنگی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس۔ پنجاب اسمبلی میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر حکومت اور اپوزیشن یک زبان ہو گئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ سیلاب کے باعث 25 اضلاع متاثر جبکہ 20 لاکھ افراد گھروں سے باہر ہیں۔ سیلاب کے باعث افراط زر میں اضافہ ہوگا، حکومت کو اس پر ترجیحی بنیادوں پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک بڑی اضطراب کی کیفیت ہے اور ایک بڑا تکلیف کا منظر ہے۔ ہمارے سارے دریا بکھرے ہوئے ہیں، اس میں بے تحاشا طغیانی ہے، بڑا لائف لاس بھی ہے، بڑا لوگوں کی لائیولی ہوڈ، ان کی پوری زندگی متاثر ہو گئی ہے۔
वजीर आबपाशी काजिम पीरजादा ने कहा कि इस बार सैलाब के साथ साथ गैर मामूली होने वाली बारिशें तबाही का बाइस बनी। आइंदा साल माहौलियाती तब्दीली के बाइस 22% पानी जायद आएगा। जब ये सैलाब आए उस दौरान मुसलसल जो है हमारा जो मराला और सियालकोट का ये जो एरिया था, जो हमारा ये जो नारोवाल, ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ पे मुसलसल सर टोरेंटल रेनफॉल थी सर। उसने भी उस क्लेमिटी में सर ऐड ऑन किए। जो जम्मू तवी में सर पानी आया वो जो हमारा है मराला बराज सर, उसकी राइट बैंक से ओवर टॉप करके सर कुछ 4 घंटे तक वहाँ से बेहतर। डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी और तहरीक इंसाफ के राना शहबाज ने दरिया में होने वाली तामीरात की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा किया। चीफ वहीप राना शहबाज का कहना था कि सैलाब के बाइस 22 अरब रुपए मालियत गंदम का नुकसान हुआ है। ये जो जितना पानी आ गया है 3-3 महीने ले जाएगा, ये जनवरी में जाकर खुश्क होगा। तो पहले जो हमारे साथ हमारा 22 अरब का नुकसान हुआ गंदम के ऊपर, कमाद के ऊपर, अब हमारी फसलें चली गई हैं, तो अब जो हमने अगली फसल जो है गंदम वो हम काश नहीं कर सकते, ये पानी नहीं सूखेगा। गंदम जो है वो अभी हमारी पहुंच से बाहर है। जो हमने 2000 बेची थी, अब हम वापस लेने गए हैं तो वो 4000 रुपये मिल रही है। तो हम इस मुल्क में कैसे रहेंगे, कहाँ से गुजारा करेंगे, कि हमारा निज़ाम जो है कौन चलाएगा। नून लीग के रुकने सूबाई असम्बली राना अरशद की जानिब से नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासादत के 1500 साल मुकम्मल होने पर पेश की जाने वाली मुबारकबादी करारदाद को मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया गया। एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर ने इजलास जुम्मे की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबूज़र शाद अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान और नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी भी ज़ाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफ़ी हो गए हैं। मुस्ताफ़ी होने के बावजूद तीनों हज़रात 30 सितंबर तक अपनी खिदमत मामूल के मुताबिक जारी रखेंगे। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूज़र शाद, इंजीनियर खालिद उस्मान और शाहिद नज़ीर चौधरी ने इस्तीफ़े सेक्रेटरी जनरल लाहौर चैम्बर शाहिद खलील को जमा करवाए। इस्तीफ़ों के वक्त प्याफ पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस की क़यादत मियां अंजुम निसार अली हसाम अस्कर, मियां मोहम्मद अली और नसरुल्लाह मुग़ल भी मौजूद थे। मियां अबूज़र शाद, इंजीनियर खालिद उस्मान, शाहिद नज़ीर चौधरी ने कहा, नई क़यादत के इंतखाब का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूज़र शाद ने कहा, चैम्बर की सरगर्मियों और मंसूबों में किसी किस्म का तातुल नहीं आने देंगे। हम 30 सितंबर तक अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी के साथ अदा करेंगे। सैलाब के बायस मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया है। फैसले का इतलाक़ पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स पर होगा। लाहौर समेत पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड के इम्तहानात मुलतवी किए गए हैं। इम्तहानात अब 29 सितंबर से शुरू होंगे। इससे कबल इम्तहानात के लिए 10 सितंबर की तारीख दी गई थी। सैलाबी सूरत हाल को देखते हुए ये फैसला किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की सैलाबी इलाकों में आशूब चश्म का फौरी इलाज मुआलजे की हिदायत। फ्लड रिलीफ कैंप्स में मकीम तमाम बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग भी की जाएगी। वज़ीर आला ने फ्लड रिलीफ कैंप में मकीम ख़वातीन और बच्चों को तोहफ़े पेश किए। नवाज ने चूंग फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया, वो मुतासरीन में घुल मिल गईं और उन्हें दिलासा दिया। मरीम नवाज ने बच्चों से गपशप की, उन्होंने बच्चों से मुख्तलिफ सवालात पूछे। मरीम नवाज का कहना था, पानी की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, घर बनाने में भी मदद करेंगे। फिक का जायजा लिया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने ब्रीफिंग दी। लाहौर में सैलाब से 4891 मौजूजात मुतासिर, 7 फ्लड रिलीफ कैंप, 17 मेडिकल कैंप और 9 लाइव स्टॉक रिलीफ कैंप कायम किए गए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चूंग में 3000 सैलाब मुतासरीन मुकीम है। कैंप में थीम पार्क, बरकत कॉलोनी, मंजूर पार्क और दीगर इलाकों के मुतासरीन को रखा गया है। फ्लड रिलीफ कैंप की सफाई के लिए वासा का अमला मौजूद है। सैलाब ज़दगान के इलाज और सेहत के लिए पूरा हफ्ता 24 घंटे डॉक्टर और तिबी अमला मौजूद है। DGPDMA इरफान अली काठिया का कहना है कि भारत की तरफ से गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग मिली है। जनाब में मराला पर पानी में कमी आ रही है और पानी अब चन्योट ब्रिज और हेड तरीमू की तरफ बढ़ रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल कैसर। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान PDMA पंजाब के DG इरफान अली काठिया ने बताया कि इस वक्त दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव
3,25,000 क्यूसिक है और इंडिया की तरफ से भी सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग मिली है। सतलुज में सूरत हाल के पेश नजर मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला पर तमाम इदारे मौजूद हैं। ब्रीचिंग की सूरत में 26 गाँव और 30,000 अफराद मुतासिर हो सकते हैं। आज हमें फिर फॉर्मली जो क्रॉस बॉर्डर इंटीमेशन है रिगार्डिंग हरी के और डाउन स्ट्रीम इन गंडा सिंह हाई फ्लड की वो वार्निंग मिली। इस वक्त गंडा सिंह पे हमारे पास तकरीबन 3,25,000 क्यूसिक्स का एक सस्टेन्ड वो फ्लो चल रहा है। तकरीबन 27 मौजाजात ऐसे हैं कि जो इसमें मुतासिर हो सकते हैं, जो शेरशाह के और 35,000 आबादी है, जो मैं आपसे पहले भी फिगर शेयर कर चुका हूँ कि जो खुदा न खास्ता मुतासिर हो सकती है, जिसमें 7,000 कंस्ट्रक्टेड यूनिट्स हैं, घर हैं। इरफान अली काठिया ने मजीद बताया कि गुज़श्ता 48 घंटे में दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,05,000 क्यूसिक हो गया है। पानी चनाब में जाने तक रावी में पानी का बहाव फिर बढ़ रहा है। टोबा टेक्सिंग और खानेवाल में सूरत हाल खराब है और वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। इस वक्त लाहौर शाहदरा के मुकाम पर एक दफ़ा फिर पानी 50-60 हज़ार से फिर 1,05,000 क्यूसिक्स के करीब इस वक्त चल रहा है और ये पानी आगे उन मिजरीज़ को और उन परेशानियों को दोबारा बढ़ाएगा जो इस वक्त बैक वाटर इफ़ेक्ट के तहत हेड सदनाई के ऊपर हमें टोबा टेक्सिंग और खानेवाल में जिस सिचुएशन का सामना है। डायरेक्टर जनरल PDMA ने बताया कि पंजाब में 3,900 गाँव मुतासिर हो चुके हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। पंजाब में सैलाब से मुतासर अफराद की तादाद 38,75,000 से तजावुज़ कर गई है। सैलाब के बाइस पेश आने वाले मुतअद्दिद हादसात में 40 अफराद जामक हो चुके हैं, जबकि इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। इस होने वाले नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी करती। रिपोर्ट के मुताबिक दरिया रावी, सतलुज और चनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 3900 से ज़ायद मौजाजात मुतासर हो चुके हैं, जबकि मुतासरीन की तादाद 38,75,000 से तजावज़ कर गई है। सैलाब में फंस जाने वाले 18 लाख लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। कैंप्स कायम कर रहे हैं, जबकि मवेशियों को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करने के लिए 395 वेटरनरी कैंप्स भी कायम किए गए हैं। मुतासरा इस्लाम में 13,22,000 जानवरों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नवील जावेद के मुताबिक नुकसानात का मुकम्मल तखमीना लगाने के बाद इसके अजाले का अमल शुरू किया जाएगा। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। सैलाबी सूरत हाल के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली पर पावर डिवीजन ने रिपोर्ट जारी कर दी। इनकी सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की सूरत हाल पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को में लाहौर, ओकाड़ा, शेखुपुरा, कसूर और ननकाना के 67 मुतासरा फीडर्स में से 44 मुकम्मल और 23 जुज़वी तौर पर बहाल हो चुके हैं। पेस्को में सवाद, बुनेर, शांगला, सवाबी और DI खान के 12 ग्रिड्स और 91 फीडर्स मुतासर हुए। 85 फीडर्स मुकम्मल और 6 जुज़वी तौर पर बहाल हो चुके हैं। गेपको के 11 ग्रिड्स और 103 मुतासरा फीडर्स में से 88 फीडर्स मुकम्मल और 16 जुज़वी तौर पर बहाल किए जा चुके हैं। फेस्को में टोबा टेक्सिंग, फैसलाबाद, चन्योड, झंग, सरगोदा, मियावाली के 26 ग्रिड और 77 फीडर्स मुतासर हुए। 19 मुकम्मल और 54 आर्जी तौर पर बहाल कर दिए गए। मैपको के 139 फीडर्स मुतासर हुए। टेस्को में शुमाली वज़ीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 17 फीडर मुतासर हुए। 2 फीडर मुकम्मल और 11 आर्जी तौर पर बहाल हो चुके। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 49 ग्रिड और 497 फीडर्स में से 239 को मुकम्मल और 249 को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के हिदायत पर महकमा हाउसिंग का सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी। साफ़ पानी अथॉरिटी ने 9 अजला में 35,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन तक पीने का पानी पहुँचाया। 15 अजला में वासा एजेंसियों ने 37 वाटर पाउडर्स के ज़रिए साफ़ पानी फराहम किया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का गुजरात का हंगामी दौरा, रिलीफ ऑपरेशन का जायज़ा लिया। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर पंजाब के जो तमाम इदारे हैं वो सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए और रेस्क्यू करने के लिए काविशें कर रहे हैं। इसी तनाजुर में महकमा हाउसिंग भी सैलाब मुतासरीन के रिलीफ ऑपरेशन में पेश नज़र आ रहा है। महकमा हाउसिंग पंजाब के ज़ेरे इंतज़ाम साफ़ पानी अथॉरिटी और वासा एजेंसीज की फील्ड फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक पंजाब साफ़ पानी अथॉरिटी ने
नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल जोन के 9 अजला में 1,06,000 लीटर पानी की फराहमी को यकीनी बनाया, जबकि 9 अजला में 35,000 से ज़ायद सैलाब से मुतासरा शहरियों तक साफ पीने का पानी पहुँचाया। 15 अजला में वासा एजेंसीज ने 37 वाटर बाउजर के जरिए सैलाब मुतासरीन तक साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया। सैलाब के इलाकों में तामीराती कामों का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल ने गुजरात का हंगामी दौरा भी किया और शदीद बारिश से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी की। जीटी रोड के अतराफ 1 किलोमीटर तवील आरजी सीवरेज ड्रेन की खुदाई का जायजा लिया, जबकि डीसी बंद की मजबूती के लिए जारी अमल को भी चेक किया। इसके अलावा लोराई, डिस्पोजल बोला, रिवर गार्डन और मुख्तलिफ मुकामात पर ऑपरेशंस का जायजा लिया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर तमाम ऑफिसर्स और स्टाफ फील्ड में मौजूद हैं और रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो फराहम किया जा रहा है। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। शहर में गिरा फरोशी अरूज पर है। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों ख़रीदने पर मजबूर हो गए हैं। मार्केट में भिंडी 280, करेले 250, शिमला मिर्च 240 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। अंगूर 450, आड़ू 420, सेब 400, नाशपाती 350 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं शहर में गिरा फरोशी अरूज पर है। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों ख़रीदने लगे हैं। मार्केट में भिंडी 280, करेले 250, शिमला मिर्च 240 फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। अंगूर 450, आड़ू 420, सेब 400, नाशपाती 350 रुपये किलो में दस्तयाब है। मार्केट में भिंडी 280, करेले 250, शिमला मिर्च 240 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। अंगूर 450, आड़ू 420, सेब 400, नाशपाती 350 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। आटे की मुकर्रर करदा सरकारी कीमतों में इजाफा होने लगा है। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक 10 किलो आटे का थैला 855 रुपये, जबकि 20 किलो आटे का थैला 1710 रुपये में बिकने लगा है। इंतज़ामिया की नाकिस चेक एंड बैलेंस के बायस गिरा फरोशी अरूज पर जा पहुंची है। कर दी गई हैं, ताहम मार्केट में सूरत हाल इसके बरक्स है। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक 10 किलो आटा के थैले की कीमत 855 रुपए, जबकि 20 किलो आटे के थैला 1710 रुपए में दस्तयाब होना चाहिए। बाजारों में आटा इससे कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। 10 किलो आटे का थैला 1100 रुपए में दस्तयाब है। दुकानदारों का कहना है कि सैलाब की वजह से गंदम की तरसील और सप्लाई मुतासिर हुई है, जिसके बायस कीमतें बढ़ रही हैं। अवामी हलकों का मौक़िफ़ है कि ज़िला इंतजामिया की नाअहली के बायस महंगाई की लहर जारी है। मिल ही नहीं रहा, जिसके पास है आटा और बहुत महंगा अपना ही रेट दे रहा है, कह रहे हैं आटा आ ही नहीं रहा, सैलाब की वजह से आटा नहीं आ रहा। किसी के पास नहीं, अगर है तो मन रेट पे फरोख्त कर रहे हो। जिनसे पूछा ये आटा क्यों नहीं आ रहा, कहते हैं पीछे सैलाब आ गया, सैलाब की वजह से सारे आम तो रफ्त सारी बंद है। आटे की जो कीमत जो मौजूद है वो तो बढ़ा के दुकानदार दे रहे हैं और एक दस्तयाबी भी नहीं है। वो जब जाएँ तो कहते हैं जी सैलाब आया हुआ है, अभी दस्तयाबी नहीं है। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का सिलसिला यूं ही बरकरार रहा तो आटे समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में गंदम, आटा और रोटी के नर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दामात का फैसला। फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला भी किया गया है। फीड मिलों में गंदम का इस्तेमाल पैरा के SDOs को गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सदबाब के लिए ख़ुसूसी इख्तियारात तफ़वीज़। पैरा को गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का टास्क। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फौरी तौर पर मुतहरिक कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हिदायत की है कि रोटी का नर्ख 14 रुपए और 20 किलो आटे बैग का नर्ख 1810 रुपए से ज़ायद बढ़ना नहीं चाहिए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा है कि आइन में छोटे सूबों से मुतल्लिक एक और तरमीम चाहते हैं। सूबे ज़्यादा होंगे तो लीडरशिप भी ज़्यादा होगी। सियासतदानों का सबसे कड़ा एहतसाब वोटर कर सकता है। जमहूरियत के सबसे बड़े पहरेदार अवाम है। दुनिया में सियासी लीडरशिप मिडिल क्लास से बनती है। बदकिस्मती से हमारा सिस्टम इस तबके को आगे आने का मौका नहीं देता। कौमों की ज़िंदगियों में कोई शॉर्टकट नहीं होते।
گروپ میاں عامر محمود نے کہا کہ عوام تک وسائل پہنچانے کے لیے چھوٹے انتظامی یونٹس ہونے چاہیے. اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل نہ کیا گیا تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. تمام انتظامی مسائل لوکل گورنمنٹ حل کرتی ہے. کوئی صوبائی حکومت اپنے اختیارات نیچے منتقل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. غلطیاں دور نہیں کریں گے تو کبھی منزل تک نہیں پہنچیں گے. ہمیں ہر جگہ انصاف ایک جیسا نہیں مل رہا. پنجاب آبادی کا 53% ہے, اس کو وسائل بھی اتنے ہی چاہیے. چھوٹے صوبے بنانے سے وسائل بچیں گے. اگر ہم عوام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں وسائل چھوٹے انتظامی یونٹس تک پہنچانا ہوں گے. اگر ہم نے اختیارات کو نچلی سطح تک نہ لے کے گئے ہم تو پھر بھی ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. کوئی صوبائی حکومت اپنے اختیارات کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پنجاب جو 53% آف پاکستان ہے, وسائل بھی پر بھی حق رکھتا ہے. میاں عامر محمود نے کہا کہ دنیا میں سیاسی لیڈرشپ مڈل کلاس سے بنتی ہے. بدقسمتی سے ہمارا سسٹم مڈل کلاس کو آگے آنے کا موقع فراہم نہیں کرتا. ہم اگر 33 صوبے بنائیں تو لیڈرشپ کی ورائٹی ملے گی. پہلے 26 ترامیم ہو چکی ہیں. ہم آئین میں چھوٹے صوبوں سے متعلق ایک اور ترمیم چاہتے ہیں. بھارت ہر 5 سال بعد نیا صوبہ بنا دیتا ہے. بھارت میں 2014 کے الیکشن میں ایک چائے بیچنے والا وزیر اعظم بنا. پولیٹیکل لیڈرشپ بھی مڈل کلاس سے بنتی ہے. بدقسمتی سے ہمارا سسٹم مڈل کلاس کی لیڈرشپ کو آگے آنے کا موقع ہی فراہم نہیں کرتا. 33 صوبے پاکستان میں بنے تو 33 چیف منسٹر آپ کو ملے. ایک ویرائٹی لیڈرشپ کی ملتی ہے. امینڈمنٹس کی ہیں کانسٹیٹیوشن میں 26. ہم ایک اور کرنا چاہتے ہیں. انڈیا میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک چائے بیچنے والا پرائم منسٹر بن گیا. چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے کہا کہ سیاستدان کا سب سے کڑا احتساب ووٹر کر سکتا ہے. ووٹر کو چاہیے کہ اپنے لیڈر کا احتساب کرے. جب ادارے کمزور ہوں تو کرپشن جنم لیتی ہے. انتظامی یونٹس اور ادارے بڑے ہیں. ہمارے ملک میں عدالتوں کا حال دیکھ لیں. دیوانی اور سول مقدمات ختم ہی نہیں ہوتے. سسٹم صحیح طریقے سے کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. گورننس اچھی ہو تو وہاں شفافیت بھی ہوگی. چھوٹے انتظامی یونٹس ہوں گے تو بہتر انداز میں آواز اٹھا سکیں گے. حکمرانوں کے لیے یا سیاستدان کے لیے سب سے بڑی سزا اگر کوئی اسے دے سکتا ہے تو وہ اس کا ووٹر ہے. جب آپ کے انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے ہیں تب کرپشن جنم لیتی ہے. عدالتوں کا نظام دیکھیں ہمیں کیا مل رہا ہے. آپ کی عدالتوں میں, ہماری عدالتوں میں دیوانی مقدمات, سول لیٹیگیشن, اس کا تو کبھی فیصلہ ہی نہیں ہو. سسٹم ان کو کام کرنے نہیں دے رہا. اور اگر آپ کی گورننس اچھی ہے تو یہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوں گی. اور اگر آپ کے چھوٹے انتظامی یونٹ ہیں آپ زیادہ قوت سے یہ آواز اٹھا سکتے ہیں. میاں عامر محمود نے کہا کہ جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی تو کرپشن بڑھ جاتی ہے. جو صوبہ 2 کروڑ کا تھا آج 13 کروڑ کا بن چکا ہے. انتظامی یونٹس بنانے سے ہی کرپشن ختم ہوگی. قانون ہمیں شفافیت کا حکم دیتا ہے. چھوٹے یونٹس ہوں گے تو عوام حکومت کے قریب ہوں گے. فیصلہ آباد ملک کا 3را بڑا شہر ہے. اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس کو الگ صوبہ بنانا چاہیے. جب آپ کے انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے ہیں تب کرپشن جنم لیتی ہے. وہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کو کنٹرول اب کیا ہی نہیں جا سکتا. جو صوبہ 2 کروڑ سے شروع ہوا تھا وہ 13 کروڑ پہ پہنچ گیا. اگر آپ کے چھوٹے انتظامی یونٹ ہیں آپ زیادہ قوت سے آواز اٹھا سکتے ہیں. آپ قریب ہوں گے حکومت کے. آج آپ کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے لاہور جانا پڑتا ہے. چیئرمین پنجاب گروپ نے کہا کہ کسی سیاستدان کے لیے جیل کوئی سزا نہیں. وہ 3-4 سال بعد دوبارہ آ جاتے ہیں, پھر حکومت میں ہوتے ہیں. ہمارے پاس 2-4 لیڈر ہیں. جب زیادہ لیڈر ہوں گے تو عوام کے پاس چوائس ہوگی. جب کوئی صوبے میں اچھا کام کرے گا تو اس کو قومی سطح پر بھی ووٹ ملے گا. میاں عامر محمود نے کہا کہ ہمارے پاس سیاستدان موجود ہیں مگر نئے لیڈرز نہیں بن رہے کیونکہ اس کا میکانزم ہی نہیں ہے. 2-3 فیملیز ہی ہیں. ہمیں میرٹ پر لوگوں کو لانا ہوگا. جب 33 صوبے ہوں گے تو لوگ ٹیسٹ ہوں گے. چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کا بجٹ پنجاب کے حساب سے ہے. بلوچستان کے پاس پنجاب جتنا بجٹ نہیں. چھوٹے صوبے میں 16 سے زائد وزراء کی ضرورت نہیں. جمہوریت کے سب سے بڑے پہرے دار عوام ہوتے ہیں. اچھی لیڈرشپ لانے کے لیے میرٹ کا طریقہ اپنانا ہوگا. قوموں کی زندگیوں میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات بدلیں. نوجوانوں کو یہ کام کرنا ہوگا کیونکہ یونیورسٹیز میں پڑھنے والے 20 سال بعد اپنے کریئر کے عروج پر ہوں گے تو ان کو بھی کام نہیں کرنے دیا جائے گا. ان کے پاؤں میں بھی بیڑیاں ہوں گی.